आइए अब आपको दिखाते हैं कोरोना संदेश। सभी व्यूअर्स को मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा नमस्कार करता हूं। पिछले 21 वर्षों से दुनिया भर में आयुर्वेद के माध्यम से मैं इलाज कर रहा हूं और आज मैं देख पा रहा हूं कि पूरा विश्व आयुर्वेद की ओर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक उम्मीद से देख रहा है। सदियों से ही हमारे यहाँ राजा महाराजा चांदी के बर्तनों में भोजन का सेवन करते थे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो आप सबके घरों में चांदी की पायल, बैंगल, पेंडेंट, कोई भी आभूषण हो, जिस पात्र में आप पानी स्टोर करते हैं उसमें वो डाल दीजिए। उस पानी का सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी जो है वो बेटर रहेगी। शुंठी, मरीच, पिपली, ये 3 हर्ब्स जो किचन की शोभा बढ़ाती हैं, इनका इस्तेमाल अधिक कीजिए और भस्त्रिका क्रिया अधिक से अधिक कीजिए। इन चीजों का इस्तेमाल करने से आप हृष्ट पुष्ट रह सकेंगे और कोरोना नामक महामारी को दूर भगा सकेंगे। When I was younger, I was very sensitive. I could feel the pain that people endured. My father once told me, "It's good that I can feel people's pain. It would be even better if I could transform one's pain into soothing relief." These words of my father nourished and nurtured the divinely planted seed in me to become a compassionate healer. And my journey with Ayurveda, the science of life, began. According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water, and earth. And solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements. As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy, in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet has helped Dr. Navdeep Sharma create the brand Risht Pusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Navdeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925. नमस्कार। माफ़ी चाहूँगा, आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण द वॉइस वॉज नॉट ऑडिबल टू यू। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस इवनिंग लाइव इंटरैक्टिव सेशन once again, where we today are going to discuss cystic fibrosis with you, and while we discuss that with you, we shall also be taking your queries in this regard and in regards of any other ailment which you want guidance in regards of the ailment through Ayurveda. इसके साथ साथ जीवन शैली के कुछ नियम, अच्छी लाइफस्टाइल के कुछ नियम जो हम अक्सर आपके साथ डिस्कस करते हैं, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करते चले जाएंगे। बट सबसे पहले जो डिजीज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, द डिजीज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू टुडे इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। सो लेट्स गो about the disease. So cystic fibrosis,
I would firstly like to give you overview of cystic fibrosis. Cystic fibrosis is an inherited disorder that causes severe damage to the lungs, digestive system and other organs in the body. Cystic fibrosis involves the production of mucus that is much thicker and more sticky than usual. It mainly affects the lungs and the digestive system. So that is cystic fibrosis for you. So in cystic fibrosis, the mucus which is secreted is more thicker than the normal mucus. देखिए, जब हम अपने organs की, internal organs की बात करते हैं, चाहे वो हमारा digestive system का gastrointestinal tract है, चाहे हमारे lungs हैं, हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले सारे के सारे membranes मॉइस्ट होते हैं, उनमें कुछ हद तक मॉइस्चर होना जरूरी है, तो म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स होते हैं इनमें से बहुत जगहों पर। बट अगर जो म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स हैं, अगर म्यूकस जो है वहां पर अगर वो नॉर्मल से अधिक थिकर म्यूकस है, तो इट इज वन साइन ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ जब हमने बात की अभी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता क्या है, हल्की सी हम कॉजेस की भी बात करना चाहेंगे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसे और क्यों होता है। जैसा कि हमने भी बताया कि सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये एक अनुवांशिक रोग है जो पेरेंट से बच्चों में आता है। सो सिस्टिक फाइब्रोसिस इज कॉज्ड बाय अ चेंज और म्यूटेशन इन अ जीन कॉल्ड CFTR, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेनस कंडक्टेंस रेगुलेटर। सो ये एक जीन है जिसमें की म्यूटेशन हो जाती है, कैरियर फादर और कैरियर मदर दोनों चाहिए हैं, और अगर कंप्लीट कैरियर से जीन्स जैसे कि आप अलग शेड में देख रहे हैं, ब्राउन शेड में एक इंडिविजुअल में होती है, तो उस इंडिविजुअल को सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। अदरवाइज द पर्सन बिकम्स अ कैरियर ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस क्यों इतना बड़ा रोग है? जब ये हो जाता है तो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, क्या ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो एक व्यक्ति को देखने को मिलती हैं, ये भी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि अपने आप में सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसा रोग है जो और कई रोगों का कारक बनता है। और आज इस टेक्नोलॉजी वाले युग में भी अभी भी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल नहीं है एलोपैथिक मेडिकल साइंसेस में। पेशेंट रंजन कुमार शुक्ला जी, आपने कहा सर आपके नंबर पर रिपोर्ट सेंड किया था, जो स्क्रीन पर नंबर शो कर रहा है रंजन के नाम से। रंजन जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्टली आपकी रिपोर्ट्स एनालाइज कर पाऊँ तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इन रिपोर्ट्स को मुझे रिस्ट पुष्ट मोबाइल ऐप के थ्रू भेज पाएँ तो डायरेक्टली मैं ये रिपोर्ट्स देख पाऊँगा। अदरवाइज ये जो रिपोर्ट्स हैं आपकी डेफिनेटली हमारे को भेजी तो जाएंगी, बट उस केस में जो ये रिपोर्ट्स हैं आपकी वो मेरी टीम एनालाइज करेगी, और मेरे साथ इस लाइव के बाद जो है वो आपकी रिपोर्ट्स डिस्कस की जाएंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी रंजन जी, अगर डायरेक्टली आप चाहते हैं कि मैं लाइव के दौरान आपकी रिपोर्ट्स को एनालाइज कर पाऊँ, रिस्ट पुष्ट मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करनी है। रिस्ट पुष्ट मोबाइल ऐप में आप डॉक्टर नवदीप शर्मा नेम सर्च कर सकते हैं, यहाँ राइट साइड पे आप जाकर के उधर भी रिपोर्ट्स अपलोड कर सकते हैं, ऊपर 3 डॉट्स हैं, वहाँ से भी रिपोर्ट अपलोड की ऑप्शन आ जाती है। तो प्लीज़ आप मुझे रिपोर्ट्स रिस्ट पुष्ट मोबाइल ऐप के थ्रू फॉरवर्ड करें तो मैं आपको गाइड कर सकूँ। हम सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात कर रहे हैं। हमने अभी बात की कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर जो म्यूकस है वो नॉर्मल म्यूकस से अधिक थिक म्यूकस जो है वो पाया जाता है। हम सिस्टिक फाइब्रोसिस की जब बात कर रहे हैं और अब ये कह रहे हैं जबकि जो म्यूकस है वो थिक है, तो उससे कॉम्प्लिकेशंस कैसी आती हैं, इस म्यूकस के थिक होने के कारण क्या हो जाता है ऐसा कि एक व्यक्ति तंगी झेलता है, हम अब उसकी बात करने जा रहे हैं। और उसमें जब हम कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आने वाली इसकी तंगियों की, श्वास प्रश्वास तंत्र पर हमारे लंग्स के अंदर क्या प्रॉब्लम करता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसकी बात करने जा रहे हैं। देखिए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करते हैं तो डैमेज्ड एयरवेज, हमारे जो एयरवेज हैं वो डैमेज हो जाते हैं,
आप अगर इसमें देखेंगे इमेज में तो एक हेल्दी आपको एयरवे दिखाई पड़ेगा, जो कि जिसमें पैसेज जो है वाइट कलर का वो ज़्यादा बड़ा है। वहीं एक डैमेज्ड एयरवे जब आप देखेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला, तो एयरवे जो है वो नैरो हो जाएगा। जब एयरवे नैरो हो जाएगा तो सांस को अंदर खींचने की और इलास्टिसिटी जो है वो हमें घटती हुई नजर आएगी, जिसके कारण कई प्रकार की रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, क्रोनिक इन्फेक्शंस होती चली जाएंगी, नेजल पॉलिप्स देखने को मिलते हैं। हेमोप्टेसिस, हेमोप्टेसिस होता है थूक के साथ खून का आना, तो हेमोप्टेसिस भी देखने को मिलता है इस डिजीज के अंदर। और एक्सट्रीम केसेस में रेस्पिरेटरी फेलियर भी देखने को मिल जाता है। तो हमने अभी देखा कि किस प्रकार से ये सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसा रोग जिसके बारे में हमने बहुत अधिक नहीं सुना होगा, हाउ क्रिटिकल अ पेशेंट बिकम्स व्हेन ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब डाइजेस्टिव कॉम्प्लिकेशंस के बाद जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस के बाद जो सेकंड कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने को मिलती हैं, जो कि मैं इमेज के थ्रू भी आपको दिखा रहा हूं। क्योंकि देखिए यहां पर भी जब हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की भी, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी जो पूरी भित्तियां हैं हमारी, जो चैनल्स हैं वो अक्लूड हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, नर्विंग हो जाती हैं उनकी। यही कारण है कि इनसफिशिएंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं सेक्रीट होती हैं और बहुत सी डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस जो है वो देखने को मिलती हैं, कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाती है, कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कॉज करता है ये डिजीज। एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिस्टिक फाइब्रोसिस अगर ये डायग्नोज हुआ है किसी पेशेंट में तो इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। Thanks for the appreciating words, Dr. Priya Chauhan. It's really good that the patient is far better now. And Sanjay Kumar ji, thanks a lot. And Shweta Swarna ji, a very warm welcome to the live today. Today we are discussing about cystic fibrosis. Now the next complications of cystic fibrosis is on the reproductive system. हमारे प्रजनन तंत्र के ऊपर भी जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है वो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं। देखिए जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं तो इनफर्टिलिटी इन मेन एंड रिड्यूस्ड फर्टिलिटी इन वुमेन, ये दो चीजें कॉज कर सकता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। व्हेन वी टॉक अबाउट इनफर्टिलिटी इन मेन, अब होता क्या है कि व्हेनेवर अ मेल इज सफरिंग फ्रॉम सिस्टिक फाइब्रोसिस, generally they become infertile because the tube that connects the testes and prostate glands, which is also known as vas deferens, is either blocked with mucus or missing entirely. So बहुत से पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी का कारण बनता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, एंड इन फीमेल्स इट्स रिड्यूस्ड फर्टिलिटी दैट इट कॉजेज। ये रिड्यूस्ड फर्टिलिटी का कारण बन जाता है नॉर्मल फीमेल से, हालांकि दे आर एबल टू कंसीव बट स्टिल इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ conception. So that is the complications of cystic fibrosis on a reproductive system. Along with this there are other complications also. हम उन complications भी अभी आएंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे। शाहिद खान जी आपने लिखा है, सर मेरी माता जी को पिछले 3 महीने से हर 10-15 दिन में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, प्लीज़ डाइट एंड मेडिसिन। शाहिद जी एक तो मैं चाहूँगा कि आप उनका नमक बंद कीजिए, जहाँ बहुत ज़रूरी लगे कि उनका नमक लेने का बहुत दिल कर रहा है तो भोजन में नॉर्मल नमक की जगह पे वहाँ पर भी आप सेंधा नमक ही इस्तेमाल करें, और अदरवाइज़ जहाँ तक हो सके आप नमक अवॉइड करें अपने माता जी के केस में। जहाँ तक सवाल मेडिकेशन का है, देखिए अगर आप सिंगल मेडिकेशन खाना ले चाहते हैं तो सिंगल मेडिकेशन में रुद्राक्ष की हिम कल्पना, आपको रुद्राक्ष का पाउडर लेना है, उसे पानी के अंदर जो है हमें वो पानी के अंदर रुद्राक्ष का जो है हिम कल्पना बनाना है, और बहुत ज़रूरी है कि उसको सुबह खाली पेट लिया जाए। अब इसके अलावा अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ आप कर सकते हैं, अगर बहुत अधिक बीपी बढ़ रहा है, 2 मेडिकेशंस है हमारी जो आप साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। वन ऑफ दोज मेडिकेशंस इज नेफ्रोसेफ, जो कि एक कर्क है, वो लिया जा सकता है। एंड द सेकेंड मेडिकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज कार्डियो सपोर्ट कैप्सूल्स। ये दोनों ही मेडिकेशंस हमने ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए जो हैं वो बनाई हैं अपने पेशेंट्स की, और साथ के साथ ये लिवर को, किडनीज को डिटॉक्सीफाई करने का काम भी करती है।
तो ये भी साथ में आप जरूर ले सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इससे पहले कि हम सिस्टिक फाइब्रोसिस कंटिन्यू करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर जय राठौर जी। गुड इवनिंग सर, माय पेशेंट्स आईडी इज दिस, माय HBV DNA 100 है, बेबी प्लान में कोई डेंजर तो नहीं है, मदर और चाइल्ड को मैं आपकी मेडिसिन जनवरी से ले रहा हूँ, मेरा लेफ्ट टीबी नॉर्मल है, प्लीज़ बताएं। शोन यादव जी, देखिए जितना कम HBV DNA आप बता रहे हैं, ज़्यादा चांसेस तो यही हैं कि बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। स्टिल मैं चाहूँगा यही किसी ट्रेंड गायनिकोलॉजिस्ट के अंडर आप ऑप्स डॉक्टर के अंडर जो है आप प्रॉपर डिलीवरी करवाइएगा और उनकी भी सलाह इस केस में ले लीजिएगा। अदरवाइज जितना कम ये वायरल लोड है इतने पे पेशेंट्स को प्रॉब्लम नहीं आती है आगे कंसेप्शन में। शाहिद खान जी, आपने कहा सर लिवर सिरोसिस पेशेंट को कौन से डाइट हमेशा अवॉइड करने हैं और कौन से डाइट हमेशा लेनी है? शायद जी, लिवर सिरोसिस पेशेंट को फ्राइड डाइट अवॉइड करने हैं, ऐसी सारी डाइट्स जिसमें फैट डाइट में अधिक शामिल है, बटर, घी, क्रीम, ये सब चीज़ें उसे अवॉइड करनी है। नॉन वेजिटेरियन डाइट भी अवॉइड करनी है, सिंपल लाइट भोजन उसको लेना है लिवर सिरोसिस पेशेंट को, तो पेशेंट जरूर जो है वो उस केस में ठीक रहता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, वी वर डिस्कसिंग अबाउट सिस्टिक फाइब्रोसिस, सो देयर आर सम अदर कॉम्प्लिकेशंस आल्सो ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, जब हम अदर कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस की, तो इन द अदर कॉम्प्लिकेशंस इट्स ऑस्टियोपोरोसिस। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस हम बोलते हैं जी, जब एक व्यक्ति के अंदर बोन्स में जितना कंटेंट हमें चाहिए कैल्शियम का वो नहीं होता है, तो दैट इज नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। नाउ ऑस्टियोपोरोसिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी कॉमन इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सिस्टिक फाइब्रोसिस। सो ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए आगे क्या करना है मैं वो भी बताऊंगा। सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड डिहाइड्रेशन। हमारी बॉडी के अंदर हमेशा ही इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोराइड, इन सभी का एक लेवल जो है वो मेंटेन रहता है हमें हेल्दी रखने के लिए। दैट इलेक्ट्रोलाइट्स दे गेट इम्बैलेंस्ड व्हेन अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सिस्टिक फाइब्रोसिस। थर्ड इज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो अ पर्सन जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, देखिए अदरवाइज भी जब एक व्यक्ति को इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ रही होंगी तो कोई नॉर्मल व्यक्ति भी डिप्रेशन में जा सकता है। So that is why especially in a patient where the patient is suffering from cystic fibrosis और जिसमें इतनी complications जो है वो patient face कर रहा है, patient के लिए demotivate होना, depression में जाना, mental health issues आना, that is a very common thing. So that is a disease known as cystic fibrosis, जिसका कि allopathic aspect हमने अभी discuss किया. Now it comes to the Ayurvedic aspect of cystic fibrosis and what exactly we can do in a patient suffering from cystic fibrosis. So cystic fibrosis की जब हम बात करते हैं तो ये वात और पित्त की अधिकता से होने वाला एक रोग है। वायु जो कि इलास्टिसिटी कम कर देती है और पित्त जो कि इन्फ्लामेशन कॉज कर देती है और एडवांस स्टेजेस में त्रिदोषज बन जाता है क्योंकि थिक म्यूकस के फॉर्म में कफ भी आ जाता है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस में एक कॉमन चीज़ जो हमने भी देखी, द कॉमन थिंग इज माइक्रो चैनल ऑक्लूजन। सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो बॉडी के माइक्रो चैनल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। सो दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग इन सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड दिस इन आयुर्वेदा इज नोन एज श्रोतावरोध। आयुर्वेद में इसे श्रोतावरोध के नाम से जाना जाता है और आयुर्वेद के माध्यम से श्रोतावरोध को दूर करने के कई मेथड्स बताए गए हैं, जिनमें कुछ ऐसी खाने वाली मेडिकेशंस हैं जो बहुत बढ़िया लाभ करती हैं श्रोतावरोध को दूर करने में। वहीं कुछ शोधन प्रक्रियाएं हैं, आयुर्वेद में शोधन चिकित्सा का वर्णन भी आता है जो माइक्रो चैनल्स को प्योरीफाई करता है। जब हम माइक्रो चैनल्स को प्योरीफाई करने की बात करते हैं और अगर हम हर्ब्स की बात करते हैं, द हर्ब विच इज़ वेरी गुड फॉर प्योरीफाइंग द माइक्रो चैनल्स इज हरितिकी, हरड़। हरड़ जिसको कि बोला जाता है हमारे आयुर्वेद में कि पथ्या है, अभ्या है और एक माँ के साथ तुलना कर दी गई है कि एक माता कभी कुपित होकर के अपने बच्चे को डांट भी सकती होगी, लेकिन खाई गई हरड़ कभी कुपित नहीं होती है और अगर शरीर के अंदर हरड़ चले जाती है तो हमेशा लाभ ही पहुंचाती है एक पेशेंट के अंदर।
तो ये जो हरड़ है, इस हरड़ का यूजेज अगर किया जाए तो श्रोतावरोध को दूर करने में बहुत लाभकारी है। दूसरी औषध जो बढ़िया काम करती है श्रोतावरोध दूर करने में सिस्टिक फाइब्रोसिस में, वो है गुदंती। गुदंती भस्म, जिप्सम की भस्म, जब हम इसकी बात करते हैं तो माइक्रो चैनल्स को प्यूरिफाई करने के साथ साथ वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज फॉर कैल्शियम, बहुत बढ़िया लाभ करती है, शरीर में हल्कापन लाती है। गुदंती का सेवन भी बहुत लाभकारी है अगर कोई सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे पेशेंट डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। तो इन दो हर्ब्स के बाद बात आ जाती है शोधन प्रक्रिया की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि श्रोता अवरोध हो चुका होता है एक पेशेंट के अंदर, जब वो पेशेंट सफ़र करता है सिस्टिक फाइब्रोसिस से, तो श्रोता अवरोध को दूर करने के लिए शोधन चिकित्सा, शोधन अर्थात वो प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर के अंदर एकत्रित आम को और अन्य ऐसे केमिकल्स को जो बॉडी के माइक्रो चैनल्स को ब्लॉक कर रहे हैं, कुछ खास विधियों के द्वारा रिमूव कर दिया जाए। शोधन में स्नेहन स्वेदन पूर्व कर्म की फॉर्म में आ जाते हैं। वमन, विरेचन, अस्थापन, अनुवासन, शिरोविरेचन, रक्त मोक्षण, कई प्रकार की प्रक्रियाएं जिनके लिए व्यक्ति को हम अपने पास रखते हैं। पूरी दुनिया में हमारे इंडोर शोधन सेंटर्स हैं, यूएस, यूएई, भारत के बहुत से मेजर सिटीज़ के अंदर हमारे शोधन सेंटर्स हैं। उन शोधन सेंटर्स पर एक व्यक्ति को रख करके जब शोधन प्रक्रिया की जाती है तो श्रोतावरोध दूर हो जाता है और बहुत से रोग, जिनमें से एक रोग है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऐसे रोगियों में भी बहुत अधिक लाभ देखने को मिलता है। तो अगर आपका कोई भी जानकार सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी बीमारी से जूझ रहा है, आप हमारा ये हेल्पलाइन नंबर उसके साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी इलाज एक बात की बात है, सबसे पहले कोशिश रहेगी लाइफस्टाइल चेंज करवाया जाए, अच्छी डाइट गाइड की जाए और उस व्यक्ति को आरोग्यता दी जाए। क्योंकि देखिए, श्रोतावरोध की जब हम बात करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें श्रोतावरोध कॉज कर देती हैं, जिनमें से एक चीज़ आ जाती है रात्रि में दही खाना। अब हम आगे चलते हैं इसके बाद, और आगे जब हम बात करते हैं तो आगे इसके आगे आ जाता है हमारे पास कि कुछ लोग जनरली ये पूछने की कोशिश करते हैं कि अगर हम आज बात करें इस चीज़ की कि अभी हमने बताया कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है तो ऐसा क्यों है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, उस डिसऑर्डर में भी हम बोल रहे हैं कि श्रोतावरोध होगा तो ये रोग होगा। तो वहाँ बात आ जाती है कि जीन्स हमारी चाहे कैसी भी हों, जब उन जीन्स को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है तभी वो जीन्स एक्सप्रेस कर पाती है। अगर हम अपने शरीर को निरोग रखें, धातुओं की पुष्टि रखें, त्रिदोष को नॉर्मल लेवल पर रखें, तो बहुत से ऐसे जीन्स जो आगे चल करके कई प्रकार के रोग कॉज कर सकते हैं, उन सारे के सारे पेशेंट्स के अंदर, उन सारे के सारे सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स के अंदर और जेनेटिक डिसऑर्डर के पेशेंट्स के अंदर भी एक व्यक्ति को लाभ जो है वो देखने को मिल सकता है और वो रोगों से बच सकता है। आदित्य जी, आपने लिखा है हेलो सर, पेट के उपले हिस्से में दर्द होता है। आदित्य जी, पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द छोटी से छोटी प्रॉब्लम जैसे कि हाइपर एसिडिटी वगैरह से भी हो सकता है, वहीं इसके साथ साथ ऐसा दर्द जो है वो किसी क्रोनिक डिजीज़ के कारण भी हो सकता है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा डिटेल्स आप इस दर्द की बताएं। क्या ये दर्द खाना खाने से पहले होता है या खाना खाने के बाद होता है, या खाने के साथ इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है और ये सारा दिन होता रहता है? क्या दबाने से इस दर्द के अंदर लाभ मिलता है, आराम आता है, या दबाने से वेदना होती है? ये भी आप लिखिए। आप चाहें तो इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको गाइड किया जाएगा। श्वेता सोना जी, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर द इनकरेजिंग वर्ड्स।
we always get encouragement from you in the form of your joining of our live sessions and in the form of these encouraging words. आदित्य भारती जी, जैसा कि आपने बताया कि सारा दिन आपको पेन होता रहता है, तो एक तो आप पटोल का सेवन शुरू कीजिए। पटोल एक ऐसी हर्ब है जो अम्ल पित्त शामक है, उसका सेवन शुरू कीजिए। आप हर्ब के फॉर्म में नहीं लेना चाहते तो एक एसी केयर नाम से टैबलेट्स आती है, इसमें हमने पटोल का इस्तेमाल किया है काफ़ी क्वांटिटी में। आप एसी केयर टैबलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टैबलेट 3 टाइम आपने लेनी है। अगर सिरप्स आप लाइक करते हैं तो एंडीजाइम के नाम से एक सिरप आता है हमारा, वो सिरप आप ले सकते हैं। उसमें पपाया पड़ा है, पपीते का इस्तेमाल किया गया है, अजवाइन का इस्तेमाल किया गया है, वो एंडीजाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 ml दिन में 3 बार लीजिए। इनमें से कोई लाइट सी चीज़ लीजिए, तो कुछ दिन के लिए फ्राइड बंद कीजिए, पानी कोशिश कीजिए गर्म पानी आप पिए। अगर ये छोटे से बदलाव और ये छोटी सी चीज़ आप करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर कोई बड़ी मेजर चीज़ नहीं है तो आपको लाभ मिलेगा ये छोटे से चेंजेस के साथ। तो हमने आज सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात की, गंभीर रोग है। बहुत से लोग इसमें स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं और बहुत से लोग इसमें ऐसी इलाजों के चक्कर में पड़ जाते हैं जिससे वो अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाल देते हैं। मैं यही चाहूँगा कि अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस का कोई भी पेशेंट हो, आयुर्वेद में ऐसा बहुत कुछ है जो आपके लिए किया जा सकता है। आप लोग हमें रीच आउट कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज भी हमारे इस लाइव सेशन से आपने लाभ ज़रूर उठाया होगा। मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा एक छोटी सी गुजारिश जो हमेशा आपसे करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके एंड से हमें ये मोटिवेशन मिलती रहे। इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं आज आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग रिष्ट पुष्ट रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। When I was younger, I was very sensitive. I could feel the pain that people endured. My father once told me, it's good that I can feel people's pain. It would be even better if I could transform one's pain into soothing relief. These words of my father nourished and nurtured the divinely planted seed in me to become a compassionate healer. And my journey with Ayurveda, the science of life, began. According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water, and earth, and solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements. As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy, in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet has helped Dr. Navdeep Sharma create the brand Risht Pusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Navdeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925. एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक के अंतर्गत अगर आयुर्वेदिक इलाज करवाया जाए तो गंभीर से गंभीर रोग में वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट से भी शीघ्रतापूर्वक काम कर सकता है। किडनी, हेपेटाइटिस और अन्य गंभीर रोगों से जूझ रहे रोगी विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर नवदीप शर्मा को तुरंत संपर्क करें। According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water, and earth, and solution to all chronic ailments lies in balancing
these body elements.
As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet has helped Dr. Navdeep Sharma create the brand Risht Pusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Navdeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925.